Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 20 for the subject of operating systems. In this lecture, we are going to start a new topic, and that is process synchronization. So here are different objectives of this lecture. We have different processes like independent and cooperative processes. We will discuss the difference between them. We will also discuss that why we need cooperative processes. Then we will discuss the concept of process synchronization, its backgrounds, and there are three classical examples of process synchronization. These are basically different problems. You will be able to understand that why we need process synchronization in operating systems. Now, what is the difference between independent and cooperative process? Now, what is independent process? In independent processes, execution of one process does not affect the execution of other processes, which means that if we have two processes that are independent, for example, we have processes P1 and P2, and both these processes are independent, P1 will not have any effect on P2, and similarly P2 have no effect on P1. So you can say that P1 cannot affect or affected by P2, and similarly P2 cannot be affected by P1 or any other processes. So what is the reason? The reason is that independent processes don't share anything like data files or memory, because they are totally independent in their nature. Next, we have cooperating processes or cooperative processes. Now, as the term suggests, by cooperation we mean to assist each other or to communicate with each other. In cooperating processes, execution of one process affects the execution of other processes. So if we have three processes P1, P2, P3, and all three are cooperative processes, you can say that the execution of P1 can affect or affected by the processes P2 and P3. Similarly, the execution of P2 can affect P1 and P3 processes or affected by P1 and P3 processes. The reason is that these processes share data with each other. Why we need cooperative processes or cooperating processes? The answer is that the cooperating processes provide us a number of advantages. Now, these advantages are information sharing, speed up computation, modularity, and convenience. Now, what is information sharing? कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो हैं वो क्योंकि डाटा शेयर करते हैं, तो इट मीन्स वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस P2. अब प्रोसेस P1 का काम क्या है कि ये स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड मार्क्स इनपुट करे, टोटल मार्क्स इनपुट करे सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद टोटल ऑब्टेन्ड कैलकुलेट कर ले और टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर ले. प्रोसेस P2 का क्या कॉन्सेप्ट है? P2 क्या करेगा? किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और उसका ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट करेगा. अब आप देखें कि प्रोसेस P2 तब तक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक इसको परसेंटेज और ग्रेड के लिए डाटा ना मिल जाए, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए और ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यही डाटा. तो इट मीन्स कि प्रोसेस P1 प्रोसेसिंग के बाद ये डाटा प्रोसेस P2 को प्रोवाइड करेगा. सो इन दिस सेंस process P1 has an effect on the execution of process P2. So you can say that both process P1 and P2 are the cooperating processes.
सो बेसिकली अब P1 प्रोसेस ने क्या किया, कुछ वैल्यूज़ इनपुट की और इनपुट करने के बाद कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की। जो प्रोसेसिंग परफॉर्म की उससे कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई और उस इन्फॉर्मेशन को उसने प्रोसेस P2 के साथ शेयर कर दिया। सो दिस इज़ बेसिकली द इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो अगर P1 अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर ना करे तो P2 एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। सो दिस इज़ बेसिकली द इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी, लेकिन जब हम एडवांस्ड कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कंकरेंट प्रोसेसेस मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम में शेयर करना पड़ता। नेक्स्ट वी हैव स्पीड अप कंप्यूटेशन। जब हमारे पास मल्टी प्रोसेसर या मल्टी कोर सिस्टम्स होते हैं उसमें हमें कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस या कोऑपरेटिंग थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, टू मेक द सिस्टम रन फास्टर ए टास्क इज़ डिवाइडेड इनटू सब टास्क and all these tasks are run in parallel with other so that we can have better performance. For example, हमारे पास 4 subjects हैं. Let's suppose we have 4 subjects. Each subject has total marks and obtained marks. Secondly, suppose we have a quad core processor. So it means that our single processor will have a total of 4 cores. This is core 1 and this is core 2 and you can say that this is core 3 and this is core 4. So हम simply क्या कर सकते हैं, हम simply क्या करेंगे, हमारी जो टास्क है वो है स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करना। टास्क हमारा है कैलकुलेट परसेंटेज। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, हर एक में क्या होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्टेन्ड को टोटल पर। तो हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट इसको असाइन कर देंगे, एक सब्जेक्ट इसको असाइन कर देंगे, एक सब्जेक्ट इसको असाइन कर देंगे और एक सब्जेक्ट हम इसको असाइन कर देंगे। सो इसमें क्या हुआ कि हमने अपनी एक टास्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये 4 जो टास्क हैं ये पैरेलल रन करेंगे। जैसे हमने मल्टी थ्रेडिंग में डिस्कस किया कि एक थ्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, एक थ्रेड कोर 2 पर एग्जीक्यूट होगा और ये थ्रेड पैरेलल फैशन में हर कोर पर एग्जीक्यूट होंगे। सो एज ए रिज़ल्ट after some time we will get all the results. So cooperative processes speed up the process. Now what is modularity? Modularity means dividing a task into certain number of portions. Just like in software we have different modules. जैसे हम कह सकते हैं कि ये होम एक मॉड्यूल है, ये इंसर्ट एक मॉड्यूल है, डिज़ाइन एक मॉड्यूल है। तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम्स को भी मॉड्यूलर फैशन में लिख सकते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को मॉड्यूलर फैशन में डिज़ाइन करते हैं, द डिज़ाइनिंग इज़ ईजी, द अंडरस्टैंडिंग वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड ए मॉड्यूलर थिंग एंड मॉड्यूलर थिंग इज़ flexible, so we can change these things easily. So cooperative processes provide modularity. Next we have convenience. Concurrent execution of cooperative processes require mechanisms that allow communicating processes with each other. अब अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ये कम्युनिकेशन चल रही है क्योंकि हमने एट द एंड जो रिज़ल्ट है उसको कंबाइन भी करना। सो इस सेंस में कम्युनिकेशन है। इसी तरह जब हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस की कि प्रोसेस P1 डाटा इनपुट करेगा और टोटल कैलकुलेट करेगा और फिर P2 को डाटा सेंड कर देगा, सो दिस इज़ आल्सो कम्युनिकेशन। सो इट मीन्स कि अगर हमने कोऑपरेटिव प्रोसेसेस को यूज़ करना है तो उनको हमें कोई मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकें और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर सकें। So you can say that
Synchronization is necessary for cooperating processes. If we are working with cooperating processes, then we need to pay attention to their communication and synchronization. The next we have process synchronization. Process synchronization problem arise in the case of cooperative processes because cooperative processes share resources. Cooperative processes divide one task into multiple subtasks and they need some sort of communication and synchronization to coordinate their actions. Now take a look at the definition of process synchronization. Process synchronization means sharing system resources by processes in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chances of inconsistent data. So आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि क्योंकि हम कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस सिस्टम रिसोर्सेज शेयर करते हैं और इन रिसोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डाटा फाइल्स हैं या शेयर डाटा. सो क्योंकि ये कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं, इट मीन्स कि ये डाटा शेयर कर रहे हैं. सो चांसेस हैं कि साइमल्टेनियसली ये डाटा को एक्सेस भी कर रहे हों और ये डाटा को अपडेट भी करना चाह रहे हों. सो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स अकर कर सकते हैं जिससे हमें इनकंसिस्टेंट डाटा मिल सकता है. और अगर इनकंसिस्टेंट डाटा होगा तो इट मीन्स उस पर जो कैलकुलेशन होगी वो भी एक्यूरेट नहीं होगी. सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो एम है वो ये है कि हम शेयर डाटा की कंकरेंट एक्सेस को प्रॉपर वे में मैनेज करें ताकि हमारे पास कभी भी इनकंसिस्टेंट डाटा अकर ना करे, ताकि हमारे रिजल्ट्स डिस्टर्ब ना हो. So maintaining the data consistency demands mechanism to ensure synchronized execution of cooperating processes. For example, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2, और प्रोसेस P1 जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, टोटल कैलकुलेट कर रहा है और टोटल कैलकुलेट करने के बाद प्रोसेस P2 को सेंड कर रहा है. सो इसमें टाइमिंग इन्वॉल्व है, यानी प्रोसेस P2 को तब तक ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स का डाटा ना मिले जब तक प्रोसेस P1 टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स को जनरेट ना कर ले. सो इसलिए इनको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स दैट अरोज व्हाइल मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट simultaneously. Now take a look at the background. Process can execute concurrently in a multiprocessor system or a multi-core system. We have process scheduling. So in preemptive scheduling, any process can be interrupted at any time. So it will go to the waiting state, which means that it has partially completed its execution. Concurrent processes can share data and this sharing can result in inconsistency, especially if one process is updating the data and other process is reading the data. So in order to maintain the data consistency, we need to execute cooperating processes in some order, in sub sequence, so that we don't get inconsistent data. Now we have classical problems of process synchronization. The first problem is bounded buffer problem, the second problem is reader and writer's problem, and the third problem is the dining philosopher's problem. Now let us take a look at these examples or problems one by one. Now what is bounded buffer problem? First of all, I am going to discuss the bounded buffer problem scenario. Bounded buffer problem is also known as the producer consumer example. In this example, we have two processes. One process is known as producer
and the second process is known as the consumer. Now both these processes share a common fixed size buffer. Now what is a buffer? Buffer is a temporary memory that is used to exchange messages and data, and by fixed size means that the buffer can contain a specific number of messages. For example, हम कह दें कि बफर की कैपेसिटी जो है वो 10 मैसेजेस हैं. So it means that the two processes will be sharing a buffer that is capable of storing 10 messages at a time. Now the producer's job is to generate data and put it into the buffer and start again. जस्ट लाइक हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रोसेस 1 है, फिर हमारे पास प्रोसेस 2 है. तो हमने कहा था जो प्रोसेस P1 है वो क्या करता है, इनपुट करता है, इनपुट obtained and total marks of different subjects. सेकंड हमने कहा था कि कैलकुलेट टोटल and total obtained. So it means that in this sense the process P1 is producer. फिर हमने कहा था कि जो प्रोसेस P2 है वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट करेगा. नाउ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस P2 को इस डाटा की ज़रूरत है. सो यू कैन से दैट प्रोसेस P2 इज़ द कंज्यूमर. और सेकेंडली हम कहेंगे कि ये इनके मिडल में कोई बफर एग्जिस्ट करता है. नाउ व्हाट विल हैपन, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस द डाटा एंड पुट इट इनटू द बफर while the consumer will get the data from this buffer. Now this is a classical scenario of producer consumer example. So the consumer is consuming data. For consuming data, it removes data from buffer one piece at a time. Just like हमारे पास जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर होता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर में भी हमने बात की कि एक फ्रंट एंड होता है और एक हमारे पास रियर एंड होता है. तो हम जो भी डाटा इंसर्ट करते हैं वो रियर से करते हैं और जो डाटा हम डिलीट करते हैं वो फ्रंट से करते हैं. सो ऑल दिस हैपन्स टर्न बाय टर्न. So consumer will read data from producer buffer in sequence. Now here is the same scenario that I have discussed with you. So this is a bounded capacity buffer. Now what are the problems? The problem is to make sure that the producer won't try to add data into the buffer if it's full. So अगर हमारे पास जो बफर है उसकी कैपेसिटी 2 है तो इट मीन्स कि इसमें सिर्फ 2 ही एंट्रीज आ सकती. और अगर बफर फुल है सो फुल बफर का मतलब ये है कि कंज्यूमर ने कोई भी डाटा बफर से रीड नहीं किया, क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट पर भी डिस्कस किया है कि कंज्यूमर डाटा कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के लिए क्या करता है, बफर से टर्न बाय टर्न डाटा रिमूव करता, जो डाटा रीड करता है उसको रिमूव कर देता है. सो अगर हमारे बफर की कैपेसिटी फुल है इट मीन्स दैट कंज्यूमर ने डाटा कंज्यूम नहीं किया. सो द प्रॉब्लम इज़ टू मेक श्योर दैट प्रोड्यूसर वोंट ट्राई टू ऐड डाटा इनटू द बफर इफ़ इट्स फुल. क्योंकि अगर प्रोड्यूसर ऐसा करेगा तो पॉसिबल है कि बफर में वो किसी वैल्यू को ओवरराइट कर जाए. वैल्यूज़ पहले से पड़ी हैं और वो उसके ऊपर वैल्यू ओवरराइट कर जाए, और जब वो वैल्यू ओवरराइट करेगा इससे हमें इनकंसिस्टेंट डाटा मिलेगा. सो यू कैन से दैट कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि तब तक प्रोड्यूसर कोई भी डाटा प्रोड्यूस ना करे जब तक कंज्यूमर डाटा कंज्यूम ना करता जाए. सिमिलरली द सेकंड प्रॉब्लम इज़ दैट कंज्यूमर वोंट ट्राई टू रिमूव डाटा फ्रॉम एन एम्प्टी बफर. अगर बफर एम्प्टी है इट मीन्स प्रोड्यूसर ने कोई भी डाटा जनरेट नहीं किया. सो जब तक डाटा जनरेट ना हो कंज्यूमर बफर को रीड करने की कोशिश ना करे. नाउ दिस इज़ द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स?
One solution is that the producer should go to sleep or discard data if it's full. So इसका मतलब क्या होगा कि अगर बफर फुल है तो जब तक बफर फुल रहे प्रोड्यूसर या तो अपना जनरेटेड डाटा डिस्कार्ड करता रहे या फिर वो स्लीप स्टेट में चला जाए, यानी अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दे. सो व्हेन द नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द बफर, द ऑपरेटिंग सिस्टम नोटिफाइज द प्रोड्यूसर प्रोसेस to start generating and filling the buffer again. So this is solution for the producer. Now what is the solution for consumer? Consumer can go to sleep if the buffer is empty. जब तक buffer empty रहेगा consumer process sleep state में चला जाए, यानी अपनी execution को stop कर दे, और जैसे ही producer buffer में data put करे operating system consumer process को एक signal send करे ताकि वो फ़ौरन से data read कर ले. Now both these are managed using inter-process communication, and for managing this we can use semaphores, mutex locks. If this issue is not managed properly, then the result can be a deadlock. In the next week we will be discussing deadlock. नेक्स्ट हमारे पास है रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम. सो एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिनेरियो ऑफ रीडर राइटर प्रॉब्लम्स. सपोज देर इज़ ए शेयर्ड रिसोर्स दैट कैन बी ए फाइल और डाटा सेट, एंड दिस शेयर्ड रिसोर्स इज एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस. सपोज वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, रीडर प्रोसेसेस एंड राइटर प्रोसेसेस. Now what are the reader process? Reader process can read from the shared data. तो आप कह सकते हैं कि रीडर प्रोसेस सिर्फ डाटा रीड कर सकता है, उस डाटा को अपडेट नहीं कर सकता. एंड एडिशनली एनी नंबर ऑफ रीडर्स कैन रीड द रिसोर्स साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ाइल है, उस फाइल को 10 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं. सो रीडिंग में कोई इशू नहीं. Now what is the responsibility of the writer process? The writer process writes data or adds data to the shared resource, but only one writer can write data. क्योंकि अगर हम मल्टीपल राइटर्स को अलाउ करेंगे डाटा चेंज करने के लिए, so it will result in inconsistent data. So only one writer is able to write on the shared resource. Now this is the scenario. We have a shared resource. We have two writers. Both writers can start writing the data and leave writing, but this writing will not be simultaneous. Similarly, we have readers. Readers can read data and stop reading, but reader can read data simultaneously. So आप कह सकते हैं कि ये दो रीडर्स जो हैं ये एट द सेम टाइम डाटा रीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो राइटर्स हैं ये एट द सेम टाइम डाटा राइट नहीं कर सकते. नाउ व्हाट आर द problems? Now there are a number of problems. The first problem is that when a writer is writing the data to the resource, no other process should be allowed to access the resource. For example, कि एक writer process data write कर रहा है. For example, this is the writer 1, it is writing the data. इस टाइम पर आप ना तो राइटर 2 को अलाउ करेंगे कि वो राइट करे, ना ही हम रीडर्स को अलाउ करेंगे कि वो रीड करें, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल कि जो डाटा रीडर रीड कर रहा है वो इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स राइटर अपडेट कर दे. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट इफ़ ए प्रोसेस इज़ राइटिंग, नो अदर प्रोसेस कैन रीड इट. राइटर पर तो हमने पहले ही कॉन्स्टेंट लगा दी है कि एट ए टाइम एक ही राइटर डाटा राइट कर सकता है. सो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर एक प्रोसेस डाटा राइट कर रहा है तब कोई भी दूसरा प्रोसेस उस डाटा को रीड नहीं कर सकेगा. द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट ए राइटर कैन नॉट राइट टू द रिसोर्स इफ़ देर आर नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ रीडर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सिनेरियो में ये दो रीडर्स जो हैं ये डाटा रीड कर रहे हैं, तो जब तक ये डाटा रीड करते रहेंगे राइटर न्यू डाटा राइट नहीं कर सकेगा, डाटा अपडेट नहीं कर सकेगा.
So what does this mean? If at least one reader is reading, no other processes can write. तो सिंपली आप कह सकते हैं कि एक राइटर प्रोसेस डाटा तभी राइट कर सकेगा जब कोई भी रीडर प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा या जब कोई भी रीडर डाटा रीड नहीं कर रहा. सो ये बेसिकली दो प्रॉब्लम्स हैं जो रीडर राइटर सिनेरियो में एग्जिस्ट करती हैं. नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन? The solution is that if a writer wants to write to the resource, it must wait until there are no readers currently accessing the resource. तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक राइटर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा. कब तक वेट करना पड़ेगा? जब तक उस रिसोर्स को कोई भी दूसरा प्रोसेस रीड ना कर रहा हो. Next we have the dining philosopher's problem. Now what is the dining philosopher scenario? Suppose we have a round table and there are a total of 5 philosophers sitting around the table. For each philosopher there is a bowl of rice and there are 5 forks or chopsticks on the table. Now the forks and chopsticks are placed between each pair of adjacent philosophers. A philosopher needs both their right and left chopstick or fork to eat. And the whole working goes like this, that each philosopher works in alternated periods of thinking and eating. यानी एक philosopher एक टाइम पर खाएगा या वो कुछ ना कुछ सोचेगा. So this is scenario. यहाँ पर आपके पास एक राउंड टेबल, आपके पास 5 चेयर्स हैं 5 फिलोसफर्स के लिए, 5 बाउल्स हैं और हमारे पास 5 ही फोक्स हैं. लेकिन हर फिलोसफर को राइस खाने के लिए 2 चॉपस्टिक्स या आप कह सकते हैं कि 2 फोक्स की ज़रूरत है. लेकिन हमारे पास टोटल 5 फोक्स हैं. एंड सेकेंडली, जब फिलोसफर खा रहा होगा तो तब वो सोचेगा नहीं, और जब वो सोच रहा होगा तब वो खा नहीं सकता. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट ए हंगरी फिलोसफर में ओनली ईट इफ़ देयर आर बोथ चॉपस्टिक्स अवेलेबल. फॉर एग्जांपल, अगर हर फिलोसफर एक चॉपस्टिक पिक कर ले तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि 2 चॉपस्टिक्स होंगी तो वो खाना खाएंगे. तो इट मीन्स अगर हर फिलोसफर एक चॉपस्टिक पिक कर लेगा या एक फोर्क पिक कर लेगा तो कोई भी फिलोसफर खाना नहीं खा सकेगा, क्योंकि हर फिलोसफर को 2 चॉपस्टिक्स की ज़रूरत है. सेकेंडली, अगर फिलोसफर 1 2 चॉपस्टिक्स या फोर्क्स पिक कर ले, इसी तरह फिलोसफर 3 ये भी दोनों चॉपस्टिक्स पिक कर ले, तो हमारे पास सिर्फ एक फोर्क या चॉपस्टिक बचेगी. इट मीन्स एट द सेम टाइम ओनली 2 फिलोसफर्स कैन ईट. आप ये नहीं कह सकते एट द सेम टाइम सारे ही खा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 फोक्स को यूज़ करना. सो ओनली 2 फिलोसफर्स कैन ईट एट द सेम टाइम व्हाइल अदर्स हैव टू थिंक. सो इफ़ बोथ फोक्स आर अवेलेबल द फिलोसफर कैन ईट, अदरवाइज द फिलोसफर हैज़ टू पुट डाउन हिज फोर्क एंड स्टार्ट थिंकिंग. सो आप सेकंड वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर एक फ़िलासफ़र सोचना चाह रहा या उसके पास दूसरी चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी चॉपस्टिक को होल्ड करके नहीं रखेगा, वो उसको भी टेबल पर लीव कर देगा ताकि उसको कोई दूसरा पर्सन जो है वो यूज़ कर सके. सो दिस इज़ बेसिकली द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? The first solution is that a philosopher must be allowed to pick the chopstick only if both left and right are available. For example, ये 2 चॉपस्टिक्स जो हैं ये इस यूज़र ने पिक कर ली, ये 2 चॉपस्टिक्स इस यूज़र ने पिक कर ली. Now there is only 1 chopstick remaining. We will not allow the philosopher number 5 to pick the chopstick because no other chopsticks are available. So the first solution is that allow the philosopher to pick the chopsticks only if both left and right chopsticks are available. जब तक लेफ़्ट और राइट दोनों अवेलेबल नहीं होंगी तो हम उसको पिक करने की परमिशन भी नहीं
प्रोवाइड करेंगे। द सेकेंड सोल्यूशन इज़ दैट allow only 4 philosophers to sit at the table and allow them to use single chopstick for eating purpose. So every philosopher can pick a chopstick and there will be no chopstick available. And a third solution is that allow only 4 philosophers to sit around the table. If all 4 philosophers pick up 4 chopsticks, देयर विल बी 1 स्टिल अवेलेबल ऑन द टेबल। यानी हम क्या करें कि यहाँ पर 5 की बजाय 4 फिलोसफर्स को बिठाएं, इस तरह 4 बाउल्स हों लेकिन चॉपस्टिक्स हमारे पास 5 ही हों। तो 5 चॉपस्टिक्स का हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर हर फिलोसफर एक चॉपस्टिक को पिक कर लेगा तो आपके पास एक चॉपस्टिक फिर भी अवेलेबल रह जाएगी। सो उस एक चॉपस्टिक को दूसरा फिलोसफर पिक करेगा, उससे वो ईट करेगा, उसके बाद वो दोनों चॉपस्टिक्स जो हैं वो फ्री कर देगा। सो इस तरह हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अब ये तीनों एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स जो आपने देखी, इनके सलूशन में कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम इन प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली रिजॉल्व कर सकते हैं।